بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایات پر شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں۔ نارتھ ناظم آباد میں اینٹی انکروچمنٹ کی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سڑک اور فٹ پر لگے پتھارے اور کیبن ضبط کر لیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا ہمیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ نارتھ ناظم آباد میں تجاوزات کے خلاف بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کی زیر نگرانی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک سے تجاوزات کا خاتمہ وہ کر دیا گیا ہے۔ سڑک اور فٹ پاتھ پر لگے پتھارے اور کیبن بھی وہ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کا کہنا ہے کہ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر وہ کارروائیاں جاری ہیں۔ کسی بھی شخص کو تجاوزات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ سب سوائل آپریٹرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، سی ای او واٹر کارپوریشن کے افسران کو سخت احکامات۔ کہا کہ میٹھے پانی کی آڑ میں چوری نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میٹھے پانی کی آڑ میں چوری نہیں ہونے دیں گے۔ کہا گیا ہے سب سوائل آپریٹرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، سی ای او واٹر کارپوریشن کے افسران کو سخت احکامات۔ کہا کہ میٹھے پانی کی آڑ میں چوری نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایم ڈی واٹر کارپوریشن نے پانی چوری میں ملوث سب سوائل آپریٹرز کے خلاف جرمنی روانگی سے قبل سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احسن، بتائے گا کیا کہنا تھا سی ای او واٹر کارپوریشن کا؟ جی بالکل، سی ای او واٹر کارپوریشن جرمنی کے دورے پر وہ روانہ ہوئے ہیں سیمینار کے لیے۔ اس سے قبل وہ ہم سے خصوصی بات چیت کی ہے انہوں نے، اور اس میں بتایا ہے کہ سب سوائل آپریٹر کو جو لائسنس دیے گئے اس پہ تحفظات کا اعزاز کیا گیا تھا کہ آپریٹر وہ غیر قانونی طریقے سے پانی کی چوری میں ایک دفعہ پھر ملوث ہو گئے، جس سے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تمام آپریٹر جو پانی کی چوری میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف وہ گھیرا تنگی کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو آپریٹر اس غیر قانونی عمل میں پانی چوری میں ملوث ملیں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، محکمہ جاتی ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج کرائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ آپریٹر جنہوں نے پانی چوری کیا ہے، ادارے کو نقصان پہنچایا ہے، ان سے وہ تمام چوری ہونے والے پانی کا وہ تخمینہ لگانے کے بعد حساب لیا جائے گا، پیسے وصول کیے جائیں گے اور ان کے لائسنس وہ بھی کینسل کیے جائیں گے۔ جی شکریہ احسن۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں سب سوائل آپریٹرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، سی ای او واٹر کارپوریشن کے افسران کو سخت احکامات۔ کہا کہ میٹھے پانی کی آڑ میں چوری نہیں ہونے دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں محکمانہ طور پہ تو اس کی لائسنس کینسل ہوں گے۔ جو بھی آپریٹر جس بڑے پیمانے پہ کیوں نہ چلا رہا ہو اس کے لائسنسز کینسل ہوں گے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی یہ ہے کہ وہ اپریہنشن ہوگی۔ ابھی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے اور اس کے بعد گرفتاری کا عمل لایا جائے گا، اور گرفتاری کے بعد ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ اماؤنٹ آپ نے کتنے زمانے سے چلا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو اس کے اوپر پوری ریکوری ڈالیں گے، اور یہ جو پوری ریکوری ہے چاہے اس نے یہ جتنا بھی نیٹ ورک ڈالا ہو وہ اسی چوری کے پانی سے ڈالا ہے، تو یہ تمام جو انہوں نے نیٹ ورک ڈالا ہے وہ کنفسکیٹ ہوگا، اور اس کنفسکیشن کے بعد اس کے اگینسٹ جو بھی ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کو بیچنے کے بعد یا اس کی آکشن کرنے کے بعد، اور وہ پوری کارروائی کریں گے۔ کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے مہنگی۔ نیپرا نے جولائی کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی منظوری دے دی، وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری، مہنگی ہونے کے باوجود بجلی نایاب، شہریوں نے فیصلے کو ظلم قرار دے دیا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیں۔ مہنگائی میں پسی عوام پر مزید ایک بم گرا دیا گیا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مزید مہنگی، گھریلو صارفین سمیت کاروباری افراد بھی پریشان۔ نیپرا نے جولائی 2024 کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارجز کی مد میں 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی، وصولی دسمبر 2024 کے بلوں میں کی جائے گی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے جولائی 2024 کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک کے لیے جولائی 2024 کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں 3 روپے 3 پیسے
पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेपरा ने अवामी समाअत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक जुलाई 2024 के फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्जेस दिसंबर 2024 के बिलों में 1 माह के लिए वसूल करेगा। महंगी बिजली पर कारोबारी अफराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा चंद माह बाद कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जबकि कारोबारी औकात में बिजली की बंदिश मामूल है। तो ये जो के इलेक्ट्रिक का मसला है, इसने चाहे कारोबारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे मजदूर हो, इन तमाम लोगों को इसने ज़हनी मरीज बना दिया है इस हवाले से कि इतनी महंगी बिजली और उस बिजली के बावजूद बिल उसके इतने ज़्यादा और वो आती भी नहीं है। यानी कि अगर कारोबार आदमी करेगा कैसे? दिन में 1 घंटा लाइट आती है, बाकी सारे टाइम लाइट चली जाती है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, जो भी कर सकता है के इलेक्ट्रिक के लिए, उनको चाहिए कि ये गरीब लोगों का ख्याल करें। गरीब लोग बड़े परेशान हैं। शहरियों ने फैसले को जुल्म करार दे दिया। कीमतों में इजाफे पर शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं इजाफी बिलों से हुकूमत गरीब आवाम को ही खत्म करना चाहती है। मैं तो ये कहूँगा, गरीब इंसान पहले ही मरा हुआ तो और मर जाएगा। मतलब लाइट होती नहीं है, रात को 2 घंटे लाइट होती है मुश्किल से, और दिन में यहाँ पर के इलेक्ट्रिक ने ऐसा जुल्म किया हुआ है 1-1.5 घंटा लाइट होती है। कारोबार करने वाला तबका भी मुतासिर, और जो कहीं जॉब करता है वो मुतासिर। अच्छा वो घर पे आए तो वो और मर जाए। जब बिल भी पे कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी भी गैर लानी लोड शेडिंग है, और उसकी वजह से ओवर बिलिंग है, जिसकी वजह से वो बिल पे नहीं कर पा रहे। अब अपना जो बिल है सबका, वो अगर सही आ गया तो बिल सब पे करेंगे, बिल तो सब पे करेंगे। अगर हर तरीके के जो अखराजात हैं, बच्चों की पढ़ाई जो सब उठा रहे हैं ना सब लोग, बिजली के जो बिल है वो भी नॉर्मल तरीके से सही तरीके से भेजेंगे, हर कोई उठाएगा। बिजली की कीमत बढ़ रही है और बिजली हमें 6 घंटे मिलती है बिजली कुल सारा दिन में, 6 घंटे या 5 घंटे बस। लेकिन रात की लोडिंग जो है तो बच्चे रोते हैं, अल्लाह की कसम, बस रात के 4 बजे उठ जाते हैं, रोते हैं वो। नोटिफिकेशन के मुताबिक FCA का इजाफा के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। लाइफ लाइन वो सारिफीन है जो 50 यूनिट से 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। BRT मंसूबा कब मुकम्मल होगा? शर्जील मेमन का डेडलाइन देने से इनकार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं BRT डेडलाइन के सामने मसाइल के पहाड़ खड़े थे। BRT मंसूबे की डेडलाइन नहीं बता सकता। पिंक टैक्सी और EV टैक्सी का मंसूबा जल्द शुरू किया जाएगा। सिंध हुकूमत सोलराइजेशन के मंसूबों को तेजी के साथ मुकम्मल कर रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे आजिज जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। BRT रेड लाइन मंसूबे की तकमील पर सवालिया निशान। शर्जील इनाम मेमन का डेडलाइन देने से इनकार। महकमा इत्तलात सिंध के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि BRT रेड लाइन के सामने रुकावटों और मसाइल के पहाड़ खड़े थे, लेकिन तमाम मसाइल हल हो गए। BRT रेड लाइन मुकम्मल होने की डेडलाइन नहीं बता सकता, लेकिन तामीराती काम तेज़ी के साथ दिन रात जारी है। अभी आपकी ऑरेंज लाइन BRT का काम कंप्लीट हो चुका है। रेड लाइन BRT सबको शिकायत थी, मुझे भी शिकायत थी, मेरी हुकूमत को भी शिकायत थी, मेरे लीडर को भी शिकायत थी कि उसका काम स्लो क्यों है। जितने हर्डल्स थे, हर्डल्स का भी पहाड़ था, लेकिन कहीं पे भी उस पूरे हर्डल्स में आपको हुकूमत सिंध की जानिब से कोई कोताही, कोई बदनीयती, कोई गलत नीयत आपको नजर नहीं आई होगी। सीनियर वजीर का कहना था कि PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का 20 लाख अफराद को सोलर की सहूलत मुहैया करने का मिशन है। 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल और कराची सेंट्रल जेल को सोलर के साथ मुंसलिक किया गया है। सूबे के तमाम अस्पतालों और स्कूलों को सोलर से बिजली फराहम की जाएगी। आपके मुल्क में जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हैं, जहाँ पे बाकी इशूज़ हैं, तो वहाँ पे आपने देखा कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट, ये एक अपनी मिसाल कायम है, क्योंकि हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि हम जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम सोलराइज करने जा रहे हैं ताकि सरकार पे बोझ कम हो। शर्जील मेमन ने कहा कि पिंक टैक्सी और EV टैक्सी का मंसूबा जल्द शुरू किया जाएगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बात करते हुए सीनियर वजीर का कहना था कि शहरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अब घर बैठे करा सकेंगे। गाड़ियों का टैक्स भी घर से ही वसूल किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। सिंध हुकूमत मेहनत कशों के हुकूक के लिए पेश। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को अदालत से मेहनत कशों की रकम जारी कराने की हिदायत। कहा कि मेहनत कशों की 25 अरब 30 लाख हाई कोर्ट में जमा है, रकम मिल जाए तो मजदूरों की फलाह बहबूद पर खर्च करेंगे। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, सिंध हुकूमत मेहनत कशों के हुकूक के लिए पेश है। तफसीलात जानते हैं।
इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत मेहनत कशों के हकूक के लिए पेश वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एहसन इकदाम। वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को अदालत से मेहनत कशों की रकम जारी कराने की हदायत जारी कर दी। कहा कि मेहनत कशों के 25 अरब 30 लाख रुपए हाई कोर्ट में जमा है। रकम मिल जाए तो मजदूरों की फलाहो बहबूद पर खर्च करेंगे। मेहनत कशों को 2 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए देते हैं। मजदूर के इंतकाल पर लवाहकीन को 7 लाख रुपए अदा किए जाते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को ओहदे पर बहाल कर दिया। शरीफुल्लाह को 19 सितंबर को नाअहली और बदनज़मी पर 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह तहकीकात में बेकसूर साबित हुए। क्लिक मंसूबा कराची के अवाम की तरक्की का जामिन। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक प्रोजेक्ट की ज़ेर सदारत इजलास। तबरेज़ मरी ने तमाम माहिरीन से अपने शोबों की तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। कहा तमाम शोबों की हफ्तावार कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। किसी भी तरक्याती मंसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची पुलिस के 2 DSPs और 4 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। अफसरान को प्रेस क्लब रेड जोन में खवातीन पर तशद्दुद की इंक्वायरी के बाद मुअत्तल किया गया है। पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी ने IG गुलाम नबी मेमन को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तफसीलात जानते हैं, अनुषा जाफरी से बात करेंगे। अनुषा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में प्रेस क्लब और रेड जोन में खवातीन पर तशद्दुद का मामला है। IG सिंध के अहकामात पर होने वाली इंक्वायरी जो हुई है उसमें थानेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने IG को क्या रिपोर्ट पेश की। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट में चंद पॉइंट्स जो वो IG सिंध को पेश किए, जिसमें पहले पॉइंट में 3 से 4 DSPs को कसूरवार करार दिया। ज़राए ने बताया कि दूसरे पॉइंट में लेडी पुलिस पर मिसहैंडलिंग का बताया गया और तीसरा पॉइंट जो बताया गया उसमें कहा गया कि DIG साउथ जोन की जानिब से जो है वो जामे मनसूबाबंदी नहीं की गई थी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट और मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी जो है वो DIG साउथ की थी। एक ही रात में 2 DSPs 4 थानेदार को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में DSP ईदगाह इमरान जागरानी और DSP गार्डन डॉक्टर सैफ जो है वो शामिल है। SHO प्रिडी आगा मशहूर SHO नबी बख्श अशफाक भी जो है वो घर रवाना कर दिया गया है। SHO रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनुषा आपका। सुपर हाईवे जुमाली पुल डकैती और लूटमार के हवाले से शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। पुल के अतराफ रवां साल 5 शहरी और 1 पुलिस एहलकार डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुए। पुलिस का दावा है कि मुकाबलों के दौरान अब तक 8 डाकू मारे जा चुके हैं। तफसीलात मिराज अख्तर की रिपोर्ट में। यूँ तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और लूटमार की वारदातें आम हैं, लेकिन आजकल सुपर हाईवे का जमाली पुल शहरियों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। ये पुल कहाँ पर है और इसका मैल वकूफ़ क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। ये मनाजिर है सुपर हाईवे पर वाक़ जमाली पुल के, जो आजकल कराची वालों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। दिन हो या रात, डाकुओं को जब भी मौका मिलता है शहरियों को लूट लेते हैं और जरा सी मज़ाहमत पर बेदरिक कत्ल कर देते हैं। रवां साल के दौरान जमाली पुल के अतराफ 5 शहरियों को कत्ल और 20 से जायद को जख्मी किया गया। शहरियों के मुताबिक यहाँ वारदातें आम हैं। जमाली पुल के आसपास जितना भी एरिया है इसमें डकैती भी बहुत ज्यादा होता है और इसके बारे में पुलिस लगे हुए है। हर तरफ चारों तरफ से पुलिस घूमते फिरते हैं। वाकई इसके पीछे लगे हुए हैं। जो आगे हाथ में आ जाते हैं उसको पकड़ा जाता है, जो हाथ में नहीं आ जाते वो जाहिर बात है वो भाग जाते हैं। वारदातें यहाँ बहुत ज़्यादा है। आस पड़ोस में हर रोज़ ही सुन रहे होते हैं हम कि यहाँ पे आज ये लुट गया, आज वो लुट गया। तो इस सुपर हाईवे के ऊपर बहुत वारदात हैं और फिर मोबाइल पे देखते हैं तो सोशल मीडिया में जमाली पुल पे अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले एक वारदात हुई है। यहाँ पे शायद टारगेट किया गया, मारा गया है उसको ना लेते हुए स्नैचिंग के दौरान। जमाली पुल के मेले वकूफ़ को देखा जाए तो ये 3 थानों का बॉर्डर है। यहाँ सच्चल, साइड सुपर हाईवे और सोराबगोट थानों की हदूद लगती है। पुलिस का दावा है कि रवां साल मुकाबलों के दौरान 8 डाकू मारे गए और 20 से जायद मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुकाबले में 1 पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ, जबकि सुपर हाईवे के अतराफ कायम झुग्गियों में रिहाइश पजीर अफराद की रजिस्ट्रेशन का काम भी आखिरी मराहिल में है। आप देखेंगे तो सामने साइड सुपर हाईवे एरिया लगता है, उसके साथ सोराबगोट है, यहाँ सच्चल है। तो हमने जमाली पुल को चारों तरफ से हमारी पिकेट्स हैं। स्पेशली रात में SSP साहब ने, जब से SSP साहब की यहाँ पोस्टिंग हुई है और कंटिन्यू पिकेट्स लगती हैं रात में, स्पेशली रात में, लेकिन दिन में भी हमारी यहाँ डिप्लॉयमेंट होती है। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से जमाली पुल के अतराफ मुस्तकिल पिकेट्स कायम कर दी गई हैं, जहाँ दिन रात पुलिस एहलकार मौजूद रहते हैं।
पुलिस हुक्काम का दावा है कि जमाली पुल के अतराफ में जो झोपड़पट्टियाँ कायम है, यहाँ रहने वाले अफराद का डेटा और रजिस्ट्रेशन कर ली गई है, जिसके बाद वारदातों में नुमाया कमी आएगी। कैमरामैन वाहिद खान के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाले फैसले और समाअत मुख्तलिफ, देखिए ये रिपोर्ट। रिकॉर्ड ऑफिस से बतौर मुलजिम नाम हटाने से मुतालिक केस, सिंध हाई कोर्ट ने बरी मुलजिम का नाम हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आईजी सिंध को 2 हफ्तों में रिकॉर्ड अपडेट करने की हिदायत भी कर दी। अब्दुल रशीद सोलंकी की डीजी एसबीसीए तैनाती का मामला अदालत पहुंच गया। एसबीसीए और दीगर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने 19 दिसंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के कानूनी मुशीर समेत 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा, अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। ट्रायल कोर्ट ने फहीम उल करीम एडवोकेट समेत 3 अफराद के कत्ल केस में मुलजिम रेहान नियाजी और तज़ीन उर्फ जैस्मीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुलशन दोजान में शहरियों से करोड़ों के फ्रॉड से मुतालिक केस, एहतसाब अदालत ने केस सेशन कोर्ट मुंतकिली से मुतालिक फरीकैन से 6 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। 9-0 से गिरफ्तार मुलजिम उबैद K2 की रेंजर्स एहलकार के कत्ल केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत, हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को शहरी की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने लापता नौजवान की तस्वीर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शाये करने की हिदायत भी कर दी। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ रियाज शाखा मज़ारों के बाहर मनशियात के इस्तेमाल का एतराफ़। डॉक्टर फौजिया हमीद ने सवाल पूछा, मज़ारों के बाहर मनशियात के आदी लोग नजर आते हैं, हुकूमत क्या करती है रोकने के लिए? सूबाई वज़ीर ने कहा, मनशियात वगैरह महकमा औक़ाफ़ की जिम्मेदारी नहीं, हम पुलिस से मदद लेते हैं। MQM रुकन सिंध असम्बली ने हब कैनाल की मॉनिटरिंग कमेटी के लिए सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में देखिए। मज़ारों के बाहर मंशियात के इस्तेमाल की सिंध असम्बली में गूंज, मंशियात ख़त्म करना पुलिस की जिम्मेदारी करार। सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी की ज़ेर सदारत हुआ। मज़ारों पर मंशियात के इस्तेमाल और आमदनी से मुताल्लिक बहस। डॉक्टर फौजिया हमीद ने सवाल किया, मज़ारों के बाहर मंशियात इस्तेमाल होती है, मंशियात के आदी लोग नजर आते हैं, हुकूमत क्या करती है रोकने के लिए? सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ रियाज शाह शिराजी ने जवाब में कहा, मंशियात वगैरह हमारे औक़ाफ़ के महकमे की जिम्मेदारी नहीं, हम पुलिस से मदद देते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर 8 नए मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। और दूसरा जो बहन ने सवाल किया कि वहाँ पर जो मंशा आते या खुदा न खास्ता किया वो हमारे औक़ाफ़ की जो हमें अब्दुल्ला शाह गाजी के अंदर नहीं होगा, कोई बाहर होगा तो वो भी हम पुलिस से बात करेंगे। उसके वहाँ के जो थाने का SH होगा या SP होगा उस इलाके का, तो हमसे कहेंगे कि भाई अगर कोई ऐसी शिकायत है उसको फौरन हल करें। कलंदर लाल शिबाज के लिए खुसूसी तौर पर 200 बिलियन रुपए मंजूर हुए हैं। वाटर कॉरपोरेशन और KMDC की ऑडिट पर रिपोर्ट भी असम्बली में पेश। चार्टर्ड पार्किंग और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी ईमान में पेश कर दी गई। रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दी गई। Sir, I rise to move a motion that the land audit reports may kindly be referred to the Public Accounts Committee. हब कैनाल का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए सिंध असम्बली में आवाज़ बुलंद। फहीम पटनी की जानिब से हब कैनाल की मॉनिटरिंग कमेटी के लिए करारदाद जमा करा दी। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक करारदादें जमा कराईं। डिप्टी स्पीकर ने सिंध असम्बली का इजलास पीर को सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। Now the House is adjourned to meet again on Monday, the 28th October at 3 PM. कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21।